Hello students, welcome back to my channel. We are preparing for Maharashtra SET examination, and if you are preparing for the TGT, PGT and NET examination, so this video for you people. If you are new my channel, don't forget to like, share and subscribe. So we will see again the more important questions which was previously asked in the different SET examination. So already I have uploaded the 70 questions. So remaining questions we will see in this session. Okay, let's see the first question. Arrange the following novels in the chronological order if which they were published. Okay, we have to arrange this work according to their publication. So when we read the question here, the questions is The Rainbow, Lady Chatterley's Love, and The White Peacock, Sons and Lovers. So The White Peacock was published first in 1911. ये जो था The White Peacock, ये जो है 1911 का वर्क था. ओके, एंड उसके बाद आया था सन्स एंड लवर, ये वाला, ये आया था 1913 में. ये 1913 का वर्क है. देन उसके बाद आया था रेनबो, वॉज पब्लिश इन 1915. ये 1915 में पब्लिश हुआ था. एंड लेडी चैटरलेस लवर जो है लास्ट में इसको पब्लिश किया गया था 28 में. ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 3, 4 एंड 3, 4, 1 एंड 2. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. तो सबसे पहले पिकॉक, फिर आएगा सन्स एंड लवर, देन रेनबो एंड द लेडी चार्टरलेस लवर. Okay, now let's see the next question. Question number 81. James Joyce, a portrait of the artist as a young man, conclude with the line, I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to forge in the sympathy of my soul the unreacted concise of my class, race, nation or creed. So the correct option is race. So the James Joyce का ये autobiographical novel माना जाता है. It is known as the autobiographical novel. A portrait of the artist as a young man, and man conclude with the series of diary entire by the protagonist Stephen Dedalus in his final entry on April 26th as he prepared to leave the island for the Paris, and he write his artistic manifesto, I go to encounter with the millionth time the reality of experience to forge in the sympathy of my soul and uncreated concise of my race. Okay, so here of my यहाँ पे race ऐसा word था. So race is the correct option. Next question we will see. Okay, which among the following statement are correct about the George Orwell? George Orwell के बारे में हमें correct sentence बताना है. ठीक है. He was born in Bengal presidency. Very correct. उनका जो बर्थ है वो बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, ब्रिटिश पीरियड. सो द जॉर्ज ऑरवेल born in Bengal presidency. It is the correct option. Okay, next. He fought for the nationalists in the Spanish Civil War. No, it's not correct. Then Burmese Days was his last novel. Burmese Days is last novel. It is also not correct. Okay, क्योंकि false है ये. He was born in Bengal presidency. Correct है. अर्थर ब्लेयर, इरिक अर्थर ब्लेयर इसका रियल नेम है. जॉर्ज ऑरवेल उनका सीडोनेम है और इनका रियल नेम है अर्थर, इरिक अर्थर ब्लेयर. और द मुथारी बंगाल प्रेसिडेंस में इनका बर्थ हुआ था 1903 में. एंड ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि ही फाउट फॉर द रिपब्लिकन, स्पेसिफिकली द मिलिट्री अगेंस्ट द नेशनलिस्ट फैसिस्ट. स्पेनिश सिविल वॉर में ये नेशनलिस्ट नहीं तो ये रिपब्लिक की तरफ से लड़े थे. बर्मिज डे वॉज हिज लास्ट नॉवेल. ये भी सही नहीं है क्योंकि ही बर्मिज डेज 1934 में उनका वर्क आया था. ये उनका फर्स्ट नॉवेल था और इनका लास्ट नॉवेल था 1984. इनका लास्ट नॉवेल, ये उनका फर्स्ट नॉवेल था. लास्ट नॉवेल था इनका
1984। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। आपको चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। और हिज रियल नेम इज एरिक आर्थर ब्लेयर, जैसे मैंने बताया ये सही है। सो फोर्थ करेक्ट है। और देन द पहला करेक्ट है एंड द फोर्थ करेक्ट है। हिज 1984 वाज पब्लिश इन 1949 और ये लास्ट नॉवेल था, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, फोर एंड फिफ्थ और ये ऑप्शन है हमारा बी में, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। ओके, रीड अ क्वेश्चन केयरफुली, पॉज द वीडियो और may try to give you also answer in the comment box. As soon as I got to Bristol, they made me a long distance cross country runner. Who is the author of the short story that begin with these statements? Okay. शॉर्ट स्टोरी हमें पहचाननी है। जिस शॉर्ट स्टोरी का ये ओपनिंग लाइन है, एज सुन एज आई गॉट अ ब्रॉस्टल, सो और ये जो ऑथर भी पहचानने हैं हमें। सो एलन सिलॉट, म्यूरेल स्पार्क, जॉन वेन, आयरिश मर्डॉक, विच वन इज द करेक्ट? सो इट इज द आइकॉनिक लाइन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द एलन सिलेट। एलन सिलेट का ये शॉर्ट स्टोरी था और इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल भी बता देती हूँ मैं आपको, लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर। 1959 में ये आया था। ओके, 1959 में ये शॉर्ट स्टोरी आया था। एलन सेलेट का ये वर्क था और इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल था द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर। ओके, और ये एक नरेटिव सेंटर ऑन द स्मिथ वर्किंग क्लास टीनेजर जो सेंट टू ब्रॉस्टल यूथ रिफॉर्मेटरी or a robbing bakery who finds the psychological escape from the silent rebellion through the long distance running. इस काइंड का ये शॉर्ट स्टोरी था एंड शॉर्ट स्टोरी का टाइटल था द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर, 1959. Next question. Who among the following is not associated with the Abbey Theatre? W.B. Yeats, Lady Gregory, James Sanjay, John Osborne. Okay. So first of all, let's see about what is about the Abbey Theatre. The Abbey Theatre was in Dublin, epicenter of the Irish literary revival का एक epicenter माना जाता था 20th सेंचुरी में, जिसे फाउंड किया था हमारे W.B. ईट्स ने। एंड W.B. ईट्स, लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टन, जेम्स सिंजे, ये सब पार्ट थे। नॉट हमें पूछा है तो इसका पार्ट नहीं थे, वो थे जॉन ऑसबर्न, क्योंकि जॉन ऑसबर्न पोस्ट वॉर इंग्लिश पोएट माने जाते हैं। एंग्री यंग मैन मूवमेंट के लिए वो जाने जाते हैं। 1950 में जो मूवमेंट चला था इंग्लैंड लंदन में, एंड कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द एबे थिएटर। तो एबे थिएटर से ये डील नहीं करते थे, ये एंग्री यंग मैन इस मूवमेंट से डील करते थे। नाउ वी हैव टू मैच द फॉलोइंग, हमें लगाना है। ठीक है, लेट्स सी, बॉक्स दे रखे हैं हमें एंड ये उसके कैरेक्टर है। इसमें से सबका नोन तो ये होगा, फ्रेडली एंसफोर्ड हिल, ये जो कैरेक्टर है पिग्मेलियन में आता है, जिसे एलिजा डुलेटल पसंद करती है ना। पिग्मेलियन, फ्रेडी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो पिग्मेलियन की जो हीरोइन है एलिजा डुलेटल एंड ही लाइक्स द फ्रेडी। ओके, एंड प्रोफेसर हिगिंस जो उसको एक सोफिस्टिकेटेड गर्ल बनाना चाहते थे, और एक सिंपल सी रूरल फ्लावर गर्ल थी, जिसपे मराठी में माय फेयर लेडी जो है ती फुलरानी, ये मूवीज भी मराठी में है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुल देशपांडे ने इसको ट्रांसलेट भी किया है मराठी में, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। देन आर्म्स एंड मैन का कैरेक्टर सीजर एंड क्लियोपेट्रा एंड सेंट जॉन। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। आर्म्स एंड मैन में जो है ना, लोका एक डिफरेंट एम्बिशियस सेवन गर्ल होती है, लोका। आर्म्स एंड द मैन में तो मैन फीचर लोका द डिफरेंट एम्बिशियस सर्वेंट गर्ल होती है, और सीजर एंड क्लियोपेट्रा का बेल्जनर ये कैरेक्टर होता है, बेल्जनर। और बेल्जनर एक कैप्टन है, क्लियोपेट्रा का गार्ड भी है ये। एंड सेंट जॉन का पोलिग्नी, मे बी द प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग बट द पोलिग्नी, सीजर एंड सेंट जॉन का फीचर है, फ्रेंच सोल्जर होता है जो जॉन रीच टू द ड्यूफिन, वहां पे वो हेल्प करता है, सेंट जॉन। जॉन ऑफ आर्क ये चैप्टर भी है 10th स्टैंडर्ड के लेसन में। तो ये पोलिग्नी उसको क्या करता है, एक फ्रेंच सोल्जर होता है जो जॉन की हेल्प करता है। तो इस तरह से हम मैच कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, वीडियोस अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें, सेशन को शेयर भी करो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको न्यू लगती है उसको नोट करते जाओ तो आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे।
नेक्स्ट लुक बैक इन एंगर वॉज पब्लिश्ड इन लुक बैक इन एंगर, ये जॉन ऑसबर्न का वर्क था, जैसे मैंने अभी बताया। जो जॉन ऑसबर्न एक एंग्री यंग मैन मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो लुक बैक इन एंगर ये वर्क उनका था और ये पब्लिश हुआ था लंदन रॉयल कोर्ट थिएटर में 1956, मई 1956, एंड ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लुक बैक इन एंगर एक एंग्री वर्किंग क्लास प्रोटोगनिस्ट जिमी पॉर्टर इसका मेन प्रोटोगनिस्ट है इस नॉवेल का। जिमी पॉर्टर याद रखो वर्किंग क्लास प्रोटोगनिस्ट है एंड रिवोल्यूशनरी ब्रिटिश थिएटर shattering the dominant drawing room dramas of the era and launching the kitchen sink realism. Okay, so the 1956, it is the publication year of Look Back in Anger. Next question. Anne Wolfe is the central character of. Anne Wolfe is the central character of which work? The Grass is Singing, Children of Violence, The Good Terrorist, The Golden Notebook. Which one is the correct? So Anne Wolfe is the central protagonist, Nobel laureate डोरिस लेसिंग का ये वर्क है एंड द करेक्ट आंसर इज डी, द गोल्डन बुक। इसका ये सेंट्रल कैरेक्टर है एन वुल्फ। शी इज द हीरोइन ऑफ डोरिस लेसिंग्स नोबेल लॉरिएट है वो, द गोल्ड नोटबुक। 1962 में ये वर्क आया था, 1962 में ये वर्क आया था और उसकी हीरोइन है हमारी एन वुल्फ। डोरिस लेसिंग ने इस वर्क को लिखा था और द गोल्डन नोटबुक, और डोरिस लेसिंग नोबेल प्राइज विनर भी है। और इस नॉवेल में ही टेलिंग द स्टोरी ऑफ एना, a blocker writer who attempt to prevent her psychological breakdown by dividing her life into the 4 distinct coded notebook: black, red, yellow and blue. Okay, now the question number 88. Okay, arrange a Beckett's trilogy in order to their publication. ठीक है, सैमुअल बेकेट की क्रोनोलॉजी वर्क की हमें लगानी है। ठीक है, सैमुअल बेकेट जिन्होंने एवेंटग्रेड ट्रायोलॉजी भी लिखी थी, ओरिजिनली उन्होंने फ्रेंच में लिखा था, बाद में उसको पब्लिश कराया था, उसको ट्रांसलेट भी कराया था एंड ये पेरिस में पब्लिश हुए थे। क्रोनोलॉजी इसकी बतानी है हमें। ठीक है, द एमिएबल मॉली मेलेंडियस, मॉली Melendez, the unamiable, okay, unamiable, okay, the unamiable, okay, देख लेते हैं। तो मॉली जो है ना वो 1951 में है, तो सबसे पहले मॉली आ जाएगा। तो ठीक है, ये भी गया और ये भी गया और ये दोनों में माली पहले है क्योंकि ये 1951 में आया था। फिर आया था मेलोडियस 1951 में ही, बट अलग अलग मंथ में पब्लिश हुए थे एंड लास्ट में देन अनएमेबल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following work of Kazuo Ishiguro won the Booker Prize of 1989? Very very famous Kazuo Ishiguro, prestigious Booker Prize इन्हें मिला है 1989 में। ओके, और कौन से बुक के लिए वो हमें बताना है। तो ही वाज अ ग्रेट राइटर, जापानीज राइटर है काजुओ इशिगुरो। ही इज अ जापानीज राइटर एंड उनका बुकर प्राइज उनके वर्क के लिए मिला है, द रिमेन्स ऑफ द डे। वेरी वेरी फेमस वर्क। काजुओ इशिगुरो अवॉर्डेड द prestigious Booker Prize in 1989 for his third novel, The Remains of the Day, and the beautifully restrained novel explored the memories and unexpressed regret of Stevens and aging Elizabeth, English butler serving as a darling hall, who replayed his blind devotion to his former master in the year of leading up to Second World War. Okay, now the question number 90. Easy question. Question number 90 is an easy question. Who is the narrator of the story The Scarlet Letters? नेथनियल हैथॉर्न का ये वर्क है, वेरी वेरी फेमस। ये उसके ए लेटर दिया जाता है उस लेडी को इसमें। नेथनियल हैथॉर्न फेमस 1850 क्लासिक द स्कारलेट लेटर विद द इंट्रोडक्टरी एसे टाइटल द कस्टम हाउस। ओके, इट इज द प्रोलॉग। सो द करेक्ट आंसर, द नरेटर इज द कस्टमर ऑफिसर। ठीक है, सो कस्टम ऑफिसर इन सलीम मैसेचुसेट्स who discover an old rag of scarlet old stitched with the letter A alongside a explanatory manuscript prompting him to write the story. Okay, next question. Which of the following is considered as the first detective story in American literature? ठीक है, which of the following is considered the first detective story in American literature? American literature की first detective story हमें बतानी है, The Silent Bullet, The Murder in the
March, The Secret of the Old Clock, The Big Sleep. And the correct answer is पहली फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी अमेरिकन लिटरेचर में कंसिडर की जाती है, द मर्डर इन द रग मार्च. ओके, सो एडगर एलन पो की 1841 की ये शॉर्ट स्टोरी है. इसे ही फर्स्ट अमेरिकन लिटरेचर में फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी माना जाता है. First modern detective story, it is introduced the character Augustus Dupin, who utilized the process of structure, logical, and reasoning called that reactionation. Okay. Next question. The real name of Mark Twain. Mark Twain का सही नाम बताना है हमें. Easy question. इरिक ब्लेयर तो हमारे जॉर्ज ऑरवेल का है. विलियम सिडनी पॉटर ओ हेनरी का ये नाम है. वेरी फेमस राइटर, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं ओ हेनरी. ठीक है, ये हमारे जो है जॉर्ज ऑरवेल है, आपको पहले ही पता है. सैमुअल डैनियल किसका नाम है आप मुझे बताओ. एंड मार्क ट्वेन का जो निक नेम है, मार्क ट्वेन का रियल नेम है सैमुअल कॉन्गलन क्लेमेंट्स. ओके, और वो मार्क ट्वेन इस नाम से एडवेंचर हकल फ्लिन एंड एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर वगैरह लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 93. The land was our before we were the lands. Which of the following poem of Robert Frost opened with this line? Purchase, home burial, the gift outright, and date of the hired man. And the correct answer is the gift outright. Robert Frost, the patriotic historical poem The Gift Outright, opened with the famous line, the land was ours before we were the lands. Okay. Next question. The color purple is an. Color purple एक क्या है? एलिस वॉकर का ये फेमस पुलित्जर प्राइज इसे मिला है. कलर पर्पल को पुलित्जर प्राइज विनिंग 1982 नॉवल है द कलर पर्पल, इज रिटन इन एपिस्टोलरी फॉर्मेट. ओके, तो ये कौन से फॉर्मेट में लिखा गया है? ये एपिस्टोलरी फॉर्मेट का ये क्या है? नॉवल है. लिखा किसने इसे? एलिस वॉकर ने. और इसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो सेलिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 95. ओके, चॉसर्स Troilus and Cressida is dedicated to Jane Gore, John of Gaunt, William Langland, Blanche of Lancaster. Which is the correct? So जो चौसर का ट्रायोलस एंड क्रिसिडा है वो डेडिकेटेड है हमारे जॉन गोर को. ओके, सो द ट्रायोलस एंड क्रिसिडा बुक 5 Geoffrey Chaucer explicitly dedicate to his work to the John Gore or the moral Gore जिसे वो कहते हैं. A work day in Atopia is dash hours. Atopia में 6 work days है. Okay, so C option is correct here. So in book second, Sir Thomas More classic Renaissance work Atopia 1516. The day life with the citizen is rigid structure which is consist exactly 6 hours. Next question. Who is described as the great England's glory and the worldwide wonder in the Bartholomew? Which one is the correct? So the correct answer is here the Earl of Essex. The Earl of Essex. Option number A is correct here. Who described great England's glory, the worldwide wonder, Bartholomew. So 1956 में nuptial poem Bartholomew Edmund Spenser shipped away from the praising the bridge to praise the military hero Robert Bruce, the Earl of Essex. स्पेंसर इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेट इंग्लैंड ग्लोरी एंड वर्ल्ड वाइड वंडर को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who offered definition of poetry as an art of imitation that teaches its audience thought, delight and pleasure? So the correct answer is Philip Sidney. लैंडमार्क वर्क है उनका एपोलॉजी फॉर पोएट्री और उसमें ये लाइन वो देते हैं पोएट्री an art of imitation that teaches its audience through the delight and pleasure. The Queen of Garbodoc. Okay, Garbodoc वर्क की क्वीन हमें पहचाननी है. So Marcella, Armenia, Cloyton और Vedena. So the correct answer is Vedena. 1561 में इसे लिखा गया था गार्बोडोक को 1561 में. इसके राइटर थे थॉमस सैकेवली एंड थॉमस नॉर्टन और ये सेलिब्रेट की जाती है पहली ट्रेजेडी
first worst tragedy in English language. This is the play model. It's a bloody plot after the classical Senecan style. Videna is the tragic queen of Britain. Okay, next question. To which Greek mythology character is Faustus compared in the prologue in Dr. Faustus? Okay. Hercules, Perseus, Icarus, Theseus. Which one is correct? So, which is the Greek mythological character? Faustus compared in the prologue in Dr. Faustus. So, the correct answer is Lycaris. C option is correct here. Next question. 120 क्वेश्चन हम करेंगे आज. Okay. Which among the following is not an Elizabethan theatre? Okay. नॉट पूछा है हमें कौन सा एलिजाबेथन थिएटर नहीं है. सो द रोज, द स्वान, द ग्लोब, द रॉयल ओपेरा. द रॉयल ओपेरा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है द रोज, द स्वान एंड द ग्लोब ये फेमस जो है एलिजाबेथन थिएटर मानी जाए. बट रॉयल ओपेरा हाउस ये जो है लोकेटेड इन कवेंट गार्डन वॉज इस्टेब्लिश अंटिल 18th सेंचुरी. रेनेसा पीरियड से बिलोंग करता है. दाउ रेचिड रैश इंट्रोडक्टिंग फुल. Whom does Hamlet address in this line? Okay. किसे कहता है Hamlet इस लाइन को? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी. Which one is correct? Okay. Polonius, Rosencrantz, Guildenstern, Claudius. So the Polonius, it is the correct answer. Act 3, Scene 4. Shakespeare's Hamlet, often called the closest scene, Hamlet confers in his mother Gertrude in his हेड चेम्बर. ओके. तो दाउ रेचुड रैश इंट्रोडिंग फूल होम डज हैमलेट एड्रेस. तो पोलोनियस को ये बोलता है एक्ट थर्ड एक्ट सीन 4 का ये शेक्सपियर के हैमलेट का सीन है. हैमलेट कन्फ्रंट हिज मदर गर्ट्यूड हर बेड चेम्बर हियरिंग अ नॉइज फ्रॉम द बिहाइंड द tapestry. Hamlet draws his sword, stab blindly believing to be king. Claudius, upon pulling back to the curtain and discover that वो Claudius की जगह पे Polonius को मार देता है. And he addressed the corpus with the line, the wretched rash introducing fool farewell. Okay. Next question, the line remembrance of things past appear in sonnet number 18, 13, 136, 129. Question number 103. So the correct option is 30. The line remembrance of things past appear in sonnet number 30. तो famous phrase है ये remembrance of things past, sonnet number 30 by William Shakespeare. Okay. Next question. Shakespeare के sonnet सबको पता होनी चाहिए. The phrase dazzling darkness is an example of oxymoron. Dazzling darkness a oxymoron का example है. B is correct क्योंकि rhetorical figure of speech अब जब हम देख dazzling darkness, the word dazzling ब्राइट होता है एंड डार्कनेस मेकिंग इट द परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक विच बेयर्स द सबटाइटल फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. गलिवर ट्रैवल्स, डिवाइन कॉमेडी, पिलग्रिम प्रोग्रेस, डॉक्टर फॉस्टस. विच वन इज करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज पिलग्रिम प्रोग्रेस. सबटाइटल है उसका फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड इज टू कम. तो जॉन बनियान का ये वर्क है 1678, क्रिश्चियन एलेगरी मानी जाती है और इसका फुल टाइटल है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड विच इज टू कम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से निकल पड़ते हैं सेलेस्टियल सिटी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोम विच एंड विद द लाइन एट लास्ट ही रोज and twitched his mantle blue tomorrow to fresh weeds and pastures new. Answer हो जाएगा हमारा 106 का Lycidas. A is the correct. Okay. Next question 107. The first scene of Congreve The Way of the World is set in. Congreve का The Way of the World ये जो setting है वो है चॉकलेट हाउस. Act number 1, scene number 1, William Congreve masterfully restoration comedy The Way of the World and इसकी सेटिंग रखी गई है 1700 में. ये वर्क आया था 1700 में और इसकी ओपनिंग इनसाइड अ चॉकलेट हाउस इंट्रोड्यूस करता है कैरेक्टर मिरेबल एंड फेनेल प्लेइंग द कार्ड्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The century called the age of enlightenment. Very easy question. बी 18th सेंचुरी को हमें एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं. मिसेस मालप्रॉप इज द कैरेक्टर इन शेरिडियन प्ले. ओके, मिसेस मालप्रॉप ये जो है द राइवल्स, आरबी शेरिडन का वर्क है द राइवल्स. इसमें ये कैरेक्टर आता है, हाईली पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर इन रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, आरबी शेरिडन 1775. The rival, she is famous for constantly misapplying long words that sound similar to the one she means, saying allegory instead of the alligator. Okay, alligator को allegory कह देती है, तो लिंग्विस्टिक ब्लंडर वो क्रिएट करती है. परमानेंटली गिव राइज टू लिटरेरी टर्म malpropism. ओके, एक टर्म ही बन गया उस कैरेक्टर से, malpropism. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायरिस्ट सैमुअल पीपस वाज डैश बाय प्रोफेसर. तो okay, प्रोफेशन क्या था हमारे डायरी राइटर का? सैमुअल पेपर्स डायरी के लिए जाने जाते हैं. 1755 में उन्होंने लिखा था डायरी को. तो वो लाइब्रेरियन थे, एडमिरल ऑफिसर थे, प्रिस्ट थे या डॉक्टर? तो वो एडमिरल ऑफिसर थे. तो सैमुअल पीपस फेमस फॉर कीपिंग द डिटेल डायरी 17th century, and he was the naval administration by profession and became the chief secretary to the admiralty. Okay, so the admiral officer थे वो. Next question, question number 111. Which place is called the Augusta in the poem Macfleck? Macfleck में क्वेश्चन है, तो हमें पहचानना है which place is called Augusta. So London was called the Augusta. तो जॉन ड्राइडन का शार्प 1682 सटारिकल पोम है मैकफ्लेक नो. वो यूज करते हैं क्लासिकल नियो क्लासिकल डेजिग्नेशन को ऑगस्टा एज अ पोएटिक निकनेम टू मॉक द सिटी लंदन. लंदन को वो ऑगस्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. Which among the following is not work by Jonathan Swift? Next question. Jonathan Swift का वर्क हमें पहचानना है. Not कौन सा नहीं है वो पहचानना है. Jonathan Swift. So the Christian hero, repairs later, the public spirit of the week, the importance of guardian considered. And the correct answer is the Christian hero is not work by Jonathan Swift. तो ये वर्क है हमारे रिचर्ड स्टील का, द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्डियन कंसिडर, द पब्लिक स्पिरिट ऑफ द वीक एंड द ड्रेपर्स लेटर्स, ऑल्सो पॉलिटिकल एंड सैटिरिकल पैम्पलेट. बट द क्रिश्चियन हीरो 1701 में रिचर्ड स्टील का ये मॉरल टैक्ट उन्होंने लिखा था. अगेन द मैच द फॉलोइंग डैनियल डीफो, रिचर्डसन, स्मॉलेट, फील्डिंग, इनके वर्क हमें पहचानने हैं. ठीक है, वेरी वेरी इजी. डेनियल डेफो का रोक्साना, रोक्साना इज द वर्क बाय डेनियल डेफो. सर चार्ल्स ग्रैंडीसन, सर चार्ल्स ग्रैंडीसन जो है वो सैमुअल रिचर्ड का वर्क है. सैमुअल रिचर्डसन का ये वर्क है. तो डेफो का रोक्सोना, रिचर्डसन का द चार्ल्स ग्रैंडीसन, स्मॉलेट का हो जाएगा रिप्रेजल. ओके, और हेनरी फील्डिंग का वर्क हो जाएगा अमेलिया. इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द इनकम्पिटेंट फिजिशियन इन ट्रिंस्टम शैंडी. ओके, सो द 114, द स्लॉप इज द करेक्ट आंसर. डी का सही हो जाएगा स्लॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन 115, क्वेश्चन नंबर 115 एंड द करेक्ट आंसर देख लेते. थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चर कितने स्टांजा है? तो इसमें 29 स्टांजा है. ओके. टू हुम पर्सिस रिलिक्स द एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री डेडिकेटेड? द डचेस ऑफ द नॉर्थम्बरलैंड, द काउंटेस ऑफ एथल, द काउंटेस ऑफ हेराल्ड, द डचेस ऑफ लंकास्टर. एंड द करेक्ट आंसर इज द डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड. नॉर्थम्बरलैंड. तो थॉमस पर्सी डेडिकेट करते हैं हाईली. 1765 का ये वर्क है, द डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड. ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. Who according to the Wordsworth is an example of poet who produced pleasurable poem from the plenteous common sense? 116 हो गया हमारा. 117 क्वेश्चन नंबर. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने एग्जाम्पल दिया है which example of poet who produced the pleasurable poem for the plainest common sense. So the correct answer is Alexander Pope की वो बात करते हैं. Preface to critical essay, William Wordsworth heavily criticize करते हैं
and he point out the Alexander as a prime example of poet who possessed the immense plain common sense. Next question. The वर्स ड्रामा कंपोज बाय वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ ने एक वर्स ड्रामा कंपोज किया था जिसका नाम था द बॉर्डरर्स. ओके, 1795 टू 1797 में 5 एक्ट का एक वर्स ट्रेजेडी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, वो था द बॉर्डरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि सिर्फ हम वर्ड्सवर्थ के ओड एंड पोम्स ही पढ़ते हैं, बट उन्होंने एक वर्स ड्रामा भी लिखा था, द बॉर्डरर्स. Next question. The novel which has the subtitle The Gothic Story. Gothic Story का subtitle हमें पहचानना है. And the correct answer is The Castle of Otranto. ठीक है. होरेस वॉलपॉल का 1764 का होरेस वॉलपॉल का 1764 का नॉवल है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, एंड ये इसका सब टाइटल है अ गोथिक स्टोरी. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. फेड far away, dissolved and quite forgot. What thou among the leaves hast never known. These lines occur in the poem. तो ये लाइन है हमारी वेरी वेरी फेमस, द नाइटिंगेल टू द नाइटिंगेल, और इसे लिखा है जैसे हमने अभी बात की जॉन केट्स ने. ठीक है. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.